Welcome, students, for this today's session of this advanced Java programming. In this today's session, we cover a new topic, that is the types of JDBC drivers. Okay, so before we start this point, JDBC drivers, uh, let me introduce about what is the JDBC and ODBC. Okay, so for this database programming, first we need to understand what are the basic JDBC drivers. So I start this session. So in a previous session, we already seen about why this Java as a front end. So the front end, you know that it is basically used to design part for this, just like the screen reports, menus, you have to create it, and user is operated of this part, and then database is store the information about the application those you have to be created. तो बेसिकली तो JDBC क्या है? JDBC हमने देखा है कि JDBC इज द जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी. अब व्हाट इज द JDBC ड्राइवर्स? अब JDBC ड्राइवर्स क्या है? It is a set of the software component that helps a Java application to interact with the database. So JDBC driver implement the lot of the classes and interfaces that enables to open the connection and interact with the database server. अब यहाँ पे it is a one JDBC driver ये क्या है? It is one of the software. But in this software we have to interact with this database. Then within this JDBC drivers can having the many classes and interface that is support to open the connection and interact with the database server. So JDBC is also connect to our the database, this execute the query, and just like that it performs the many operations. First make the connections, SQL statements, execute SQL queries, view or modify the results. In this way it directly operate over the database by this is the JDBC drivers. So without JDBC drivers it is impossible to connect to your the database. So first step is for the database connectivity is installing the proper JDBC driver. So what? If you have to make the connection of these JDBC drivers, first of all you have to know that what are the different types of these JDBC drivers. So let me start. तो यहाँ हमने देखा है कि JDBC क्या है. थोड़ा सा JDBC के बारे में मैं आपको बोलता हूँ. और JDBC is we have to create the connections of the database. Okay, तो यहाँ पे हम और भी बोल सकते हैं कि JDBC is an low level drivers, or these low level drivers is to be support for connecting and transaction with this data source. तो ODBC क्या है? ODBC is the Open Database Connectivity. It supports provided by the Microsoft. It is an one also interface in which you can connect with any applications program or any database,
and for this we need the data source. Data source, that is the database, is associated with this DBMS operating system or networking platform. DBMS drivers is supplied by the DBMS vendors, and driver manager is supplied by the vendor of the operating system platform. तो यहाँ पे तीन पार्ट है, ये देखिए आप. डेटा सोर्स. डेटा सोर्स मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद दिस अ डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म. अब डीबीएमएस ड्राइवर्स क्या है? इट इज सप्लाइड बाय द डीबीएमएस वेंडर और इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज. और उसके बाद में डेटाबेस मैनेजर. और मैनेजर कौन है? मैनेजर इज सप्लाइड बाय द वेंडर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म वेयर द एप्लीकेशन इज रनिंग. तो ये तीन पार्ट है, ये आप ध्यान में आपको आना चाहिए. डेटा सोर्स, सोर्स बोले तो डेटाबेस. डेटाबेस ड्राइवर्स इट इज सप्लाइड बाय द डीबीएमएस कंपनी, और डेटाबेस मैनेजर इट इज सप्लाइड बाय द operating system platform. So these are the different concepts related with this database: data source, DBMS driver, and driver manager. Okay, so in this these three concept is important for us. तो मैं बेसिकली यहाँ पे अभी आपका जो पॉइंट है या आपका जो सेशन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो टाइप्स ऑफ द जेडीबीसी ड्राइवर्स. अब यहाँ पे जेडीबीसी ड्राइवर्स कौन कौन से? तो पहला जो है बेसिक जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर. सेकंड कौन सा है? नेटिव एपीआई ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल जावा ड्राइवर. तीसरा कौन सा है? नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, उसको क्या कहा? उसको बोल सकते हैं प्योर जावा ड्राइवर फॉर डेटाबेस मिडलवेयर. और चौथा कौन सा है? थीन ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं? प्योर जावा ड्राइवर. तो अब ये दिस कंसेप्ट इज न्यू फॉर यू. यू हैव टू बी. अब बेसिकली आपको कैसा है कि पहला डेटा सोर्स कौन सा है, डेटाबेस ड्राइवर कौन से है, डेटाबेस मैनेजर कौन सा है, ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस, देन यू हैव टू डिसाइड दैट कि विच ड्राइवर इज सपोर्ट फॉर योर द एप्लीकेशन. सो इट इज अ task is not a difficult, but you have to clear that कि which driver is support for your the application. तो पहला जो है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, हम वहाँ देखेंगे पहला. दूसरा नेटिव एपीआई, थर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, फोर्थ वन इज द थीन ड्राइवर हम देखेंगे, और फिर बाद में इसका हम कंक्लूजन देखेंगे. अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर. अब यहाँ पे कैसा है कि आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे तो आपके पास, आपको कहाँ जाना है? ये देखिए आप, मैं तुमको एक थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल आपको बोलता हूँ. सपोज इफ यू आर इन औरंगाबाद and your information is available in the Pune, then if you want to be collect this information from the Pune, then what are you doing first? You just first create the path means road. आप क्या करने वाले हैं? पहले उसको रोड मैप करेंगे कि बेसिकली पुणे कहाँ है. अब जहाँ पे भी पुणे है वहाँ का आपका रोड अगर क्लियर होता है तो उसके बाद में आप काम कर सकते हो. आपका अगर रोड है तो फिर आप क्या करोगे? क्लाइंट जो भी है या जो भी एप्लीकेशन है
वहाँ क्या करेगा, इट कैन बी पास द इंफॉर्मेशन थ्रू द चैनल। अब चैनल कौन सा है उसके पास में, एसक्यू है। एसक्यूएल बोले तो स्टेटमेंट्स या जो भी है, और एसक्यूएल क्यूरी थ्रू तुम्हारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस तक लेके जाएगा, और फिर डेटाबेस क्या करेगा, वहाँ पे ऑपरेट करेगा, और वह प्रोसेस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वह वन अनदर बस या अनदर व्हीकल से हमको पास करेगा। इन दिस वे देर इज अ वन वे कम्युनिकेशन और देन अगेन टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे से इंफॉर्मेशन जाएगा, उधर से इंफॉर्मेशन आएगा। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है क्लाइंट साइड पे हमको एक क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और वहाँ ड्राइवर को हम बोलते हैं कि जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। अब who is to be given by this ODBC JDBC it provided by the software companies, only you have to install it। अब उसके बाद में ODBC ड्राइवर भी आपको उसके साथ में मिलते हैं। तो JDBC ODBC का एक ब्रिज बनाना है आपको। अगर ब्रिज नहीं है तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उधर नहीं पास होगा। तो फर्स्ट आपको जो है जावा एप्लीकेशन में आपको इनबिल्ट कौन मिल रहा है, जेडीबीसी एपीआई। अब जेडीबीसी एपीआई क्या है, इट इज द कलेक्शंस ऑफ द क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अब ये आपको जावा के साथ में मिल रहा है जेडीबीसी एपीआई। अब जेडीबीसी एपीआई थ्रू आपको जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर से आपको कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद में जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर इट इज हैविंग इट्स ओन ओडीबीसी एपीआई। अब वहाँ ओडीबीसी एपीआई ओडीबीसी ड्राइवर को कनेक्ट करेगा, और वहाँ ओडीबीसी ड्राइवर इज कनेक्ट विद द डेटाबेस। अब ये थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 ड्राइवर। ओके, अब ये बेसिक क्या करता है, इट कैन बी कन्वर्ट्स द जेडीबीसी मेथड कॉल टू द ओडीबीसी फंक्शन कॉल। Then ODBC depends on the native libraries of the operating system. This driver is the platform dependent। और मेन यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट के लिए हमको जो भी ड्राइवर प्रोवाइड किया है वो उसका नाम क्या है, सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। सिंपल है ये, it is a very simple database connectivity of these ODBC drivers। it is easy to install, but यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, परफॉर्मेंस ओवरहेड और इंस्टॉल्ड ऑन ईच क्लाइंट मशीन, और इट इज नॉट सुटेबल फॉर द एप्लेट प्रोग्रामिंग। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि ये ड्राइवर कौन सा है, आपका सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। अब ये जो है टाइप 1 आपका हो गया है, ये सिंपल है। और आपको जब कनेक्शन करने हैं आपके डेटाबेस को, तो आपका नाम क्या है, सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। तो ये आपका टाइप 1 हो गया है, टाइप 1। अब टाइप टू को क्या है, इसमें हमने ओडीबीसी निकाला है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, यहाँ पे बीच में कौन आ गया है, नेटिव एपीआई ड्राइवर। अब नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या है, इट इज़ अ सिंपल वन है ये। इसको क्या बोलते हैं हम, टाइप 2 ड्राइवर। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको टाइप 1 का जो हमने स्टडी किया है, जस्ट वेट। अब यहाँ पे टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि ओडीबीसी ड्राइवर्स इज ऑन द क्लाइंट साइड एंड simple if you have to install in Java
was in the market, this driver was very useful. And the reason was that the mostly database only support the ODBC. तो ये जो JDK 1.2 जब लॉन्च हुआ था तब यहाँ का वो फर्स्ट ड्राइवर है. अभी आप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा था. JDBC ODBC Breeze has removed in the Java 8. ओके, सो अगर आपके पास 1.7 है तो वहाँ तक ही यह सपोर्ट करेगा. इन Java 8 JDBC ODBC Breeze has been removed. Okay, so if you make the connectivity with the access, then it will be not possible for in current softwares. So we choose the another path one. Okay, तो यहाँ पे यहाँ सेकंड वन है JDBC नेटिव API. अब JDBC नेटिव API इसको क्या बोलते हैं हम, टाइप 2. अब JDBC API get converted into native C or C++ API call. They are unique and important to the database. Okay, तो यहाँ पे ये जो है नेटिव API, तो इसके बारे में हम एक एग्जांपल में बोलता हूँ. इफ डेटाबेस इज चेंज्ड, इट्स नेटिव API हैज टू बी अ चेंज. फॉर एग्जांपल Oracle कॉल इंटरफेस OCI ड्राइवर. तो OCI ड्राइवर इज द एग्जांपल ऑफ दिस नेटिव API ड्राइवर. अब यहाँ पे कैसा है कि वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर्स you have to be installed. If you have to install the vendor specific driver on each client side, then driver converted the JDBC method call into native call of this database. Okay, तो यह native API according to the vendor or client side requirement, it can be create the driver. Okay, तो यहाँ आपका एडवांस इट इज़ अ फास्टर. और टाइप 2 इज़ द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. यहाँ पे क्लास वेंडर क्लास लाइब्रेरीज मिलता है. इट नीड्स द एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन एंड इट डज नॉट सपोर्ट द एप्लेट प्रोग्रामिंग. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये भी वेंडर साइड का जो भी काम है या वेंडर साइड की रिक्वायरमेंट के थ्रू यह काम करता है. और यह आपका एग्जांपल Oracle कॉल इंटरफेस. तो इसके बाद में थर्ड जो आता है, थर्ड जो नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर. इसको और एक नाम दिया जाता है JDBC नेट प्योर ड्राइवर. नेट प्योर जावा ड्राइवर फॉर डेटाबेस मिडलवेयर. अब यहाँ पे देखिए, इफ यू हैव टू एक्सेस द डेटाबेस, ओके, देन व्हाट, टाइप 3 ड्राइवर यूजेस द 3 टायर अप्रोच. अब यहाँ पे क्या होता है कि 3 टायर अप्रोच का काम होता है. देखिए इस फिगर में देखिए कि यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट क्लाइंट है, देन सर्वर है और फिर डेटाबेस है. Client is always associated with the JDBC API and network protocol driver. अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर फिगर में देखने के बाद अगर आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, इट इज़ द 3 टायर मॉडल and this middle tier is responsible to convert the JDBC call directly or indirectly into a vendor specific database protocol. Okay, so if you make the networking or 3 tier architecture, for this purpose we have to use the pure Java driver. This type of the driver is very flexible, that is single driver
can actually provide the access to the multiple database. अब यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह मैक्सिमम चलता है मिडलवेयर को। तो उसकी जो एडवांटेज है, इट इज सिंगल ड्राइवर कैन हैंडल द एनी डेटाबेस प्रोवाइडेड बाय द मिडल टायर। इट कैन बी यूज्ड इन एनी वेब एप्लीकेशन, नो नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर और क्लाइंट मशीन। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बिकॉज एट मिडलवेयर एट द डेवलप to database coding, client machine must support the network protocol. तो मुझको ऐसा लगता है कि यह आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ है कि व्हाट इज दिस नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर मीन्स इट सपोर्ट द नेटवर्क एप्लीकेशंस अगर आप बनाते हो तो दिस ड्राइवर्स इज सपोर्ट फॉर दिस. So we going to the last drivers, thin driver. अब यहाँ पे thin driver is called as the 100% pure Java. If you use the Java application, then thin driver is totally developed by the Java. It connects all the Java drivers. Okay, it is connects all Java drivers directly to the vendor specific database protocol. This driver protocol is the highest performance driver for the database. Okay, thin driver is completely written in Java. Because of that, it is called as the 100% pure Java drivers. It is the platform independent, means pure Java driver. Performance is very good in comparison with all drivers. No need any middleware services. All the process of applications are managed by the JVM. And what are the disadvantage of this? Need a separate driver for each database. यहाँ का क्या है, थोड़ा आपको जो भी हर डेटाबेस के लिए आपको सेपरेट ड्राइवर्स मिलते हैं. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि अगर आपको MySQL कनेक्टर होना है तो दिस ड्राइवर इज यूज टू two-tier architecture of the Java as it directly get connected to the database through the socket. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 100% जावा ड्राइवर ही आप यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ये हायर साइड का है, तो बेटर वे यू गोइंग फॉर दिस 100% प्योर जावा ड्राइवर्स. सो परफॉर्मेंस अच्छा है और all the process of the applications are managed by the JVM. So in this way thin driver तो टाइप 4 ये हमने कवर किया है. तो in this way in today's session we cover about all these four drivers of this